RBI Grade B officer's salary, which was already a decent figure of 20 lakhs plus CTC, has been revised further. ये रिवाइज्ड सैलरी क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट बिफोर हैंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द रिवीजन इज रियली हैंडसम. इन दिस वीडियो आई वुड बी नॉट ओनली टेलिंग यू द रिवाइज सीटीसी, बट आई वुड ऑल्सो बी टेलिंग यू द इन हैंड कॉम्पोनेंट सो दैट यू ऑल्सो गेट अ रियलिस्टिक फिगर विच यू विल बी गेटिंग इन हैंड. तो चलिए शुरू करते हैं. इफ यू सी द प्रीवियस नोटिफिकेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, इट वॉज मेंशन्ड दैट द बेसिक इज अराउंड 35,150. Now this has been revised to 55,200, and this revision has been done starting 2017, that if you joined RBI in 2017 you will get this revised salary since 2017, though this revision has been announced now. So you can imagine the arrears, which would be huge in the amount. Then all other components like grade allowance, special allowance, prerequisite allowance, local compensatory allowance have also been increased. I will not go into the detail that what these components are. Let's concentrate on the main figure. हमें तो भैया नंबर देखना है, क्या सैलरी है, that is what matters as of now. DA थोड़ा कम हो गया है. Earlier the basic was less, so DA used to be around 100%. Now basic has been increased, so now DA has been decreased. So it's coming around 25 to 26,000 now. If I add all these components here, my monthly figure comes out to be 1 lakh, which is 12 lakhs yearly. Is this all you would be getting at RBI? Nahi. This is the bare minimum. There are still many other allowances, perks, facilities that you would be getting. वो क्या हैं? Apart from this, you will be getting monthly allowances. ये monthly allowances क्या हैं? First of all, whatever monthly allowances are being shown on your screen, you will definitely get them, irrespective of whether you gave any bill or not, except the one highlighted in pink, which are conditional. For example, petrol allowance. आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, कुछ नहीं है, डजेंट मैटर, यू विल स्टिल गेट दिस 20,000. दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. तो पेट्रोल अलाउंस है 20,000 पर मंथ, एज्यूमिंग एन एवरेज पेट्रोल रेट, और आप किसी भी सिटी में है, इट विल डिपेंड अपॉन दैट. डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट पेट्रोल दिया जाता है. मुंबई में 200 लीटर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में अराउंड 180 लीटर, एंड अदर सिटीज़ में 150 लीटर पर मंथ दिया जाता है. बट लेट्स टेक दिस फिगर ऑफ 20,000 पर मंथ. ठीक है, मुंबई में तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा. नाउ पेट्रोल रेट्स आर रियली हाई. देन देर इज अ हाउस होल्ड अलाउंस फॉर यू टू हैव अ गुड मेड और अ सर्वेंट. देन देर इज एन इंटरनेट अलाउंस ऑफ 2,000. लैंडलाइन बिल, if provided, you will get 1386. This is conditional. Then there is a newspaper allowance of 917, equipment maintenance allowance of 500, which is basically to maintain your phone, which is given by RBI if at all, or laptop. Then there is HRA allowance of 60,000. There are some discussions going on to increase this to 75,000, but this is conditional. Conditional in the sense, if you have taken RBI headquarters, RBI quarters, not headquarters, then it will not be given to you. Or if you have taken a house on rent worth rupees 50,000, तो आपको वो 50,000 ही मिलेगा, 60,000 नहीं मिलेगा. तो काफ़ी लोग आरबीआई के स्टाफ क्वार्टर्स ही लेते हैं, तो उनको सिर्फ क्वार्टर मिलता है, 60,000 नहीं मिलता है. बट आई थिंक गेटिंग एन अकोमोडेशन फॉर फ्री is something is a benefit of a different kind. Then if you have children, you will get children education allowance of 7,000 per children. I'm assuming you are having one child, so that would be 7,000 per month. Then there are Sodexo coupons, which are as usual as our normal currency. This can be used to buy any food items in any of the big retail chains. If I add all these, this adds to be around 1 lakh per month. ईयरली 12 लाख हो गया. ठीक है, तो 12 लाख पिछली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था, 12 लाख मैंने आपको ये दिखाया, 24 लाख आपका हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम एनुअल अलाउंसेज ऑल्सो. वाओ, मतलब मंथली है फिर एनुअल भी है. देयर इज अ बुक ग्रांट ऑफ रुपीज 8,000 एनुअली, सो दैट यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड बाई रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स. देन देयर इज अ मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन फॉर योर मेडिकल एक्सपेंसेज, डॉक्टर विजिट्स, एनी सर्जरी, समथिंग ऑफ दैट काइंड. 13,000 है, ये भी डिक्लेरेशन पे है, आपने खर्च किया हो ना किया हो आपको ये मिलेगा. Then there is a briefcase allowance of 6,500. I am not sure what is this for. I think this is coming from a Babu culture where bureaucrats used to carry briefcase to their offices. But I think आप इस 6,500 में कुछ और अच्छा ले सकते हैं. Then there is a furniture allowance, though it is not given annually. This is given once in 5 years. 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं. आप या तो इससे नया फर्नीचर ले लीजिए या इससे कुछ और ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है. बट सिंस दिस इज गिवन once in 5 years, I have divided this 2 lakh by 5 to get an annual figure of 40,000.
ठीक है। देन देर इज अ स्पेक्टिकल अलाउंस 13,000 मिलता है मिला के आपको और आपकी वाइफ का। देन देर इज अ LTC विच इज रियली अ गुड फिगर, 1,25,000 per person once in 2 years. So assuming you and your wife are there, so it would be 2.5 lakh. In 2 years, I have divided by 2. This is comes out to be 1,25,000. और आपकी वाइफ के अलावा आपके बच्चों को भी मिल सकता है अगर आपके बच्चे हैं, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट एज ऑफ नाउ। ठीक है, बट इससे ही आपका ये फिगर अराउंड 2 लाख ईयरली बन जाता है। सो इफ आई ऐड ऑल दीज कंपोनेंट्स, योर सैलरी, योर मंथली अलाउंसेस, योर एनुअल अलाउंसेस, भैया फिगर फाड़ू बन गया है। फिगर इज अराउंड 26 lakhs पर ईयर। बट इज दिस व्हाट यू वुड बी गेटिंग इन हैंड? नो सर, आपने बहुत अच्छी पिक्चर दिखा दी है। इन हैंड सैलरी क्या आएगी? आजकल सभी लोग पूछते हैं ना इन हैंड कितना है। इन हैंड देखिए, इन हैंड समझने से पहले ये समझिए सारा पैसा आपका ही है। अगर कहीं और जा रहा है तो या तो वो रेगुलेशंस हैं या आपको कुछ वो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, देयर वुड बी अ डिडक्शन ऑफ अराउंड 7,000 फ्रॉम दिस फॉर NPS और मे बी मोर, बट वॉट एवर इज द डिडक्शन, इक्वल अमाउंट वुड बी पुट बाय RBI ऑल्सो। सो अगर RBI 7,000 काट रही है, 7,000 ही RBI डालेगी, मतलब 14-15,000 आपके NPS अकाउंट में जाएगा, विच इज रियली रियली a good idea about your retirement. Then there is a tax deduction as per government regulations जो 15 से 18,000 होगा ही होगा। तो ये 18 + 7 25,000 आपका यहाँ से कट गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर डिडक्शन वुड बी फॉर HRA। अगर आपने RBI स्टाफ क्वार्टर्स ले लिए, 60,000 आपको नहीं मिलेगा, तो ये 60K आपका उस केस में डिडक्ट हो सकता है। और अगर आपके बच्चे नहीं है तो ये 7,000 भी आपका चला जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, the deductions would be around say 85, or if I include this 7,000 also 90K. 90K per month means around 12 into 90 is 11 lakhs. तो 11 लाख आपका पैसा डिडक्ट हो सकता है, which means out of 26 lakhs you would be getting 15 lakh in hand. अब आप सोच रहे होंगे सर 26 लाख दिखा के अब आप 15 लाख बोल रहे हैं, 11 लाख कहाँ गया? वही मैंने आपको अभी बताया। इसमें से जो 11 लाख कटा है, मेजरली आपका 7+ lakhs तो HRA का ही कट गया, क्योंकि आपने RBI स्टाफ क्वार्टर्स ले लिए, और बाकी 3 लाख आपका टैक्स और NPS में चला गया। बट माई ओपिनियन इज इफ यू आर स्टिल गेटिंग 15 lakhs इन हैंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग एन हाउस टू लिव इन, आपको कोई टेंशन नहीं है, RBI ने उसको मेंटेन करना है। आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस बढ़ता जा रहा है धड़ाधड़। ठीक है, आपके बच्चे की एजुकेशन फ्यूचर के लिए सिक्योर है, बिकॉज RBI विल गिव इट्स फी। और आपको क्या चाहिए? इवन इन अ सिटी लाइक मुंबई और दिल्ली 15 लाख मिल रहा है, घर मिल रहा है, बच्चे की एजुकेशन सिक्योर है, रिटायरमेंट सिक्योर है, और क्या चाहिए यार? मतलब छप्पड़ बाढ़ के इससे ज्यादा क्या मिलेगा? और ठीक है, तो ये मैंने आपको रियलिस्टिक फिगर भी दिखा दी है, आइडियलिस्टिक CTC भी दिखा दिया है, कुछ ऐसा छुपाया नहीं है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, थ्रू विच यू कैन, if you get education in any of the higher rung universities like Oxford, then RBI can bill your entire education, can pay your entire education fee, which can be approximately 60 to 80 lakhs. ये लेना बहुत मुश्किल है, पर अगर मिल जाए तो इट्स लाइक आपको छप्पड़ पाट के मिल गया। देन देयर आर हॉलीडे होम्स ऑल्सो। RBI is tied up with good hotels all over India where you can go and stay by just giving 100 rupees per night. Wow! और ये होटल्स ऐसे नहीं है, मिनिमम 3 स्टार तो हैं। इसके अलावा यू गेट कैंटीन फैसिलिटीज वेयर यू गेट सब्सिडाइज फूड, यू गेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम फैसिलिटीज, देन यू हैव एनुअल पार्टी बजट्स विच आर यूज टू गो आउटसाइड योर सिटी एंड से स्टे फॉर 1 or 2 days देयर। आई मीन पूरा टीम जाता है। सो अगर मैं सब कुछ मिला लूँगा, इस आपका सैलरी, एनुअल अलाउंसेस, मंथली अलाउंसेस, ये जो स्कॉलरशिप, हॉलीडे होम्स, कैंटीन, जिम फैसिलिटीज, सारा मिला के आई थिंक ये CTC आपका 30 lakhs तो टच करता ही करता है। पर आप इस 30 lakhs के फिगर पे मत जाइए। मैंने आपको जो इनिशियली बताया था 15 लाख का फिगर मान के चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट अ हाउस, योर रिटायरमेंट कॉर्पस, योर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ऑल दीज अलाउंसेस, कैंटीन, जिम, स्पोर्ट्स, पार्टीज, हॉलीडे होम्स, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। और लाइफ में क्या चाहिए? लाइफ झिंगा लाला, मतलब RBI हो गया तो लाइफ झिंगा लाला, टेंशन फ्री, बस सब मस्ती में चलता रहेगा और चल रहा है। इफ आई सी माई स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड RBI 2-3 years back, they are well settled, very happy, satisfied. That is all you want from life. और पैसे के अलावा मैं बताऊं तो अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूं, आई थिंक द स्टेटस, द रिस्पेक्ट यू गेट वर्किंग इन RBI इज ह्यूज। आप कहीं भी जाएंगे, you say that I am working for the Central Bank of India, that is RBI. Even outside India you will get a respect that you will not have imagined without being an RBI. ठीक है, तो बस अब
मैं जानता हूँ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये मुझे लेना है, बट उसके लिए यू नीड टू अर्न दिस। ये आपको कोई देगा नहीं, आपको ये अर्न करना पड़ेगा, एंड यू कैन अर्न दिस by doing preparation for RBI in a right way, in a right manner, by doing all the hard work, all the smart work, being committed, being dedicated, blah blah blah। आपको ये अर्न करना है, मिलेगा नहीं, खरीद नहीं सकते हैं, अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी के लिए आई विल टेक योर लीव, बाय बाय, हैव अ गुड डे।